सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिपोर्ट्स क्लासेस। इसके पहले वाली क्लास में हमने पूरी रिपोर्ट्स की स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया था कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद आवर रिपोर्ट्स क्लासेस, एंड टुडे इज़ आवर क्लास नंबर फर्स्ट फॉर रिपोर्ट्स. We will also go through various classes of reports in which we will cover all majority of reports that are important for our exams perspective, and that much उतना portion जो कि important है for our exam perspective. So today we are going to start with unit 1 reports, that is agriculture reports. So in 2 classes or maybe 3 but maximum 2 classes we will cover reports that are important for unit number 1 agriculture, because the class are 2 because of its importance, क्योंकि काफ़ी important है ये यूनिट. सो वी विल कवर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, एग्रीकल्चर सेंसस रिपोर्ट, इनपुट सर्विस रिपोर्ट, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स, एंड I've also thought to include MSP data, important, that is recent MSP data that is important for exam, then advanced estimates that are important for exams. So I'll also cover all of that data जो कि exam के लिए important है for agriculture perspective. So today we are going to start with a very very important report, that is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare annual report that's released on 14th of May 2025. So it becomes very very important for us to study what is there in report. So based on our different syllabus topic, we will cover report simultaneously उस important topic के लिए भी, but what is important for our agriculture chapter we are going to cover of that report in today's class. So this class is really important. The data we are going to study becomes really important, so you just need to be focused while studying this data and just try to remember the data, क्योंकि I know reports का काफ़ी सारा data हो जाता है जो कि काफ़ी confusing हो जाता है when we try to remember that. So the best solution is making your own notes. That would really help you कि अगर आप different notes बनाएंगे अपने खुद की writing में, and if you will jot all the things down, it would really help you. So we are starting with annual report of Ministry of Agriculture. So what does the report says? First of all, this report is released by Ministry of Agriculture and it's released on 14th of May 2025, as recent as it can get, so it becomes really important. Now it tells us about importance of agriculture in India, कि agriculture का क्या importance है इंडिया में, how much does agriculture contributes to our workforce, what is the contribution in our economy and different sectors of economy. So सबसे पहला जो आपको डेटा याद रखना है वो है ये कि रिपोर्ट बताता है कि 54.6% of total workforce engaged in agriculture and allied activities, and this data the report has quoted as per census 2011. So first data to remember is 54.6% जो है हमारा टोटल वर्कफोर्स का, वो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में engaged है. Second data important to remember is how much is agriculture's contribution to gross value added at current prices 22-23. What is gross value added? Gross value added यानी कि अगर मैं आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म में समझाऊँ तो जो हम टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं और उसमें से हम उसकी रॉ मटेरियल या इनपुट की प्राइजेस को माइनस कर देते हैं तो निकल कर आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड. तो ग्रॉस वैल्यू एडिड में एग्रीकल्चर का शेयर इज़ 18.4%. ये दोनों डेटा आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है. आई ऑल्सो ट्राई टू हाईलाइट एंड टेल यू कि आपको क्या डेटा याद रखना है. सो फर्स्ट important data is 54.6% of total workforce is engaged in agriculture. Second important data is 18.4% share in India's GVA at current prices is contributing to our Indian economy. So ये दोनों डेटा आपको याद रखना है. फर्स्ट इज एग्रीकल्चर का GVA 18.4%, वर्कफोर्स शेयर इज 54.6%. देन एक ही रिपोर्ट जो है वो हमें कुछ लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स बताती है एज पर 22-23. आपको ये नहीं सोचना है कि इफ़ इट्स गिवन एज पर 22-23 इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम बिकॉज वी आर पेयरिंग इन 2025. इट डज नॉट मीन्स दैट. The report has been released on 14th of May 2025 and it quotes us data of 22-23 that also becomes very important for us to study in 2025. So as per land use statistics जो ये data है it is very important for you to know, क्योंकि direct questions can be framed on these data. So we know हमारा जो total land area है we have studied from our very childhood कि जो total land area है इंडिया का that is 328 million hectares. ये हमने हमेशा study किया.
बट हम जो मिस कर देते हैं और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है रिपोर्टेड एरिया. नाउ द रिपोर्ट टेल्स अस कि एक्चुअली जो इंडिया में रिपोर्टेड एरिया है वो कितना है. द रिपोर्टेड एरिया इज़ 306.65 मिलियन हेक्टर्स. तो फॉर श्योर आपको ये डेटा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना ही रखना है. सी यानी इसका मतलब क्या हुआ, वॉट डज इट मीन्स इज कि एक्चुअली द एरिया इज 328 मिलियन हेक्टर्स, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सम डेटा और लैक ऑफ सम स्टैटिस्टिक्स या जो रिपोर्ट नहीं हो पाया लैंड, सो दैट इज़ वाई जो रिपोर्टेड एरिया है इंडिया का दैट इज़ 306.65 मिलियन हेक्टर्स. एग्रीकल्चर लैंड इज़ हाउ मच, जो टोटल एरिया है, जैसे मान लेते हैं हमारा इंडिया है टोटल, तो उसमें 59% जो लैंड एरिया है वो एग्रीकल्चर का लैंड एरिया है. ये रिपोर्ट हमें ये बताता है. सो दिस डेटा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. सो फर्स्ट डेटा इज़ total land area is 328 million hectares, but in that the reported area is 306.65 million hectares. The agricultural land area is 59% of total area. अगर हम इसको टोटल एरिया का 59% निकालेंगे तो इट विल कम अराउंड 179 मिलियन हेक्टर्स. सो आपको ये भी याद रखना है कि अराउंड 179 180. आई टेल यू, यू कैन रिमेंबर द अप्रॉक्स फिगर्स. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एग्जैक्टली 0.65 या एग्जैक्टली 179 यू हैव टू रिमेंबर. जस्ट रिमेंबर इट अप्रॉक्सीमेटली कि ओके 179 180 करीब. It's our agricultural land area. Reported area is around 306 million hectares. That would also work. So agricultural land is 179 million hectares. Now two areas that you have to remember, that is net sown area and second is gross cropped area. Now what is net sown area? Net sown area का मतलब होता है अगर आपने एक बारी या एक किसान ने एक ही बारी कभी भी उस लैंड पर खेती की हुई है, so that we calculate as net sown area. I'll give you a very simplistic example. For example, there is a farmer एंड उसके पास 5 हेक्टर्स का लैंड है एंड ही डज फार्मिंग इन विंटर सीजन ऑफ राइस. सो द एरिया दैट वी विल कंसिडर एज हिज इज़ 5 हेक्टर्स. बट फॉर एग्जाम्पल द सेम फार्मर जिसके पास 5 हेक्टर्स लैंड है वो विंटर एंड समर दोनों में फार्मिंग कर रहा है. सो देन द एरिया वुड बी कंसिडर्ड एज 10 हेक्टर्स. सो ये जो हम 10 हेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. And the 5 hectares of land that we are considering is net sown area. The simplistic example and meaning is net sown area मतलब हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बार कल्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ. और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में वी आर ट्राइंग टू नो हाउ मच टाइम्स the land is being cultivated, like how much times the multiple cropping is being done. So the gross cropped area we calculate as total cropped area. So net sown area in our India is about 140 million hectares. That is around 42.8% of our geographical area. So ये data you have to remember it, that our net sown area is 140 million hectares and gross cropped area is 219 million hectares. So इसका मतलब ये हुआ when we are trying to know कि gross cropped area मतलब how many times multiple cropping has been done, and in net sown area we are trying to know at least once if the cropping has been done. So हम इसकी cropping intensity निकाल सकते हैं by dividing gross cropped area upon net sown area. That comes to be 155%. यानी कि how many number of times crops are grown on the same land in one agriculture year. मान लेते हैं अगर cropping intensity if it is less than 100%, इसका मतलब हुआ कि land is cropped once in a year and there is no multiple cropping being followed on the land, right? But अगर हमारा cropping intensity is 155%, इसका मतलब ये हुआ कि definitely multiple cropping follow की जाती है. So that is how we calculate cropping intensity. So आपको इसमें कौन कौन सा डेटा याद रखना है, I'll tell you. I have already told you actually कि सबसे पहले रिपोर्टेड एरिया 306, एग्रीकल्चर लैंड एरिया 179 और 59%, नेट सोन एरिया 140, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 219 एंड नेट सोन एरिया दैट इज 42% ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया. क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज 155.9% और ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी वी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ग्रॉस अपॉन नेट. और अगर आपने स्टैटिक क्लासेस ली हैं सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्रॉपिंग इंटेंसिटी देयर ऑल्सो एंड वी ऑल्सो calculated this by our formulas.
So this is cropping intensity. Now what it is written here, some trends. For example, जो हमारा टोटल क्रॉप्ड एरिया वी आर कैलकुलेटिंग एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. तो जो हमारा टोटल क्रॉप्ड एरिया है या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो 66% बढ़ा है फ्रॉम 1950 to 22-23. In 1950 it was 131 million hectares and in 22-23 it became 219 million hectares. It means there has been a growth of 66% from 1950 to 2022 of total cropped area or gross cropped area. So now this table I have taken directly from the report and it gives us classification of land. यानी कि ये हमको बताता है सबसे पहले तो जो हम ऑलरेडी एक तो देख चुके हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी that is 155.9%. this we have already remembered. Then cultivated land, एग्रीकल्चर लैंड हमने अभी पढ़ा 179 मिलियन हेक्टर्स. दिस आई हैव टोल्ड यू जो 59% है ऑफ टोटल लैंड एरिया 179 मिलियन हेक्टर्स. सो दिस ऑल्सो वी हैव लर्न. नाउ इट इज सेइंग दैट एग्रीकल्चर लैंड हैज वी हैव कैलकुलेटेड इट बाय प्लसिंग 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स दिस. So we have added cultural wasteland, land under miscellaneous tree crops, fallow land other than current fallows and current fallows and net area zone. ये calculate करके add करके हमने agricultural land के ऊपर हम derived हुए हैं. So cultural wasteland is around 11 million hectares. Land under miscellaneous tree crops is around 2.9 million hectares. Fallow land other than current fallows is 11 million hectares. Current fallow is 13 million hectares and net sown area दो हमने already याद किया that is 140 million hectares. So ये सब कुछ जब हमने ऐड किया so we got agriculture land that is 179 million hectares. Now ये जो important ये जो डेटा है ये आप approximately you can remember. कुछ डेटा we have already remembered तो it's very easy to remember like net sown area 140, gross 219, agriculture land 179. ऐसे करके you can remember, it would be easy to remember. आप बस ऐसे अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो you can write agricultural land 179 and how we got through 179, cultural wasteland 11 and then land under miscellaneous 2.9 ऐसे करके आप लिख लीजिए and it would be easy for you to remember these figures and it's not really difficult for you to remember these figures, easily याद हो जाएंगे and I hope कि आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया. Now the next figure is cultivated land that we got by adding current fallow and net area sown that is 154 million hectares. Now the above figures, सबसे पहले reporting area we have already learned it is 306 million hectares. Forests are about 72 million hectares. Area put to non-agricultural uses is around 27 million hectares. Barren and unculturable land is 16 million hectares. Permanent pastures and other grazing land is around 10 million hectares. So in your notes you just make a short table, just write in short forest 72 million hectares, non-agriculture uses 27 million hectares and it would be easy for you to remember. I believe these figures are important for you to remember because it's given in report that's been released just 2 months before. So I believe these figures are important, this table is important, so you can just remember the figures by making a table. Now second important figures or important details that has been given in the report is related to irrigation. Now क्या डेटा दिया है irrigation का? दो डेटा, एक net irrigated area, एक gross irrigated area. Now in above report we learned about gross cropped area and net sown area, right? So net irrigated area में से हम अगर percentage निकालेंगे how much it is by of percentage of net sown area and gross irrigated area में हम निकालेंगे कि कितना परसेंटेज है ये of gross cropped area. सो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक बार रिपीट करती हूँ. हमने नेट सोन एरिया पढ़ा था ऊपर दैट इज़ 140 राइट और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेट इरीगेटेड एरिया है 79 मिलियन हेक्टर्स. सो अगर हम 79 को 140 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 56.4% आएगा. ये जो 56.4% है ये परसेंटेज है ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया ओवर नेट सोन एरिया. सो 2% आपको याद रखने हैं और 2 फिगर्स याद रखने हैं इस पूरे एग्जाम्पल में. एक नेट इरीगेटेड एरिया का फिगर, एक ग्रॉस इरीगेटेड एरिया. देन क्या परसेंटेज है ग्रॉस इरीगेटेड एरिया ओवर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया
and percentage of net irrigated area over net sown area. So net sown area is 140, ये हमने याद कर लिया. Gross cropped area is 219, this also we have remembered. अब net irrigated area is 79 and gross irrigated area is 122. ये दो additional figures you have to remember. अगर अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है ऑफ ग्रॉस इरीगेटेड एरिया ओवर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, हाउ वी विल, सो हम इसको डिवाइड करेंगे 219, no actually 122 divided by 219 into 100, yeah that would give us 55.8%. एंड ऐसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे 79 डिवाइड बाई 140 इंटू 100, दैट वुड गिव अस 56.4%. तो ये चारों डेटा ऐसे डिराइव होंगे एंड आपको याद करना है. नेट इरीगेटेड एरिया इज 79, ग्रॉस इरीगेटेड एरिया इज 122, देन परसेंटेज ऑफ ग्रॉस इरीगेटेड एरिया ओवर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज 55.8% एंड परसेंटेज ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया ओवर नेट सोन एरिया इज 56.4%. नाउ हेयर इट इज़ गिवन कि जो नेट इरीगेटेड एरिया है उसमें कैनल्स, टैंक्स, ट्यूबवेल्स, अदर वेल्स एंड अदर्स एग्जाम्पल्स इंक्लूड होते हैं जब हम इरीगेशन करते हैं. तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ट्यूबवेल्स का, दैट इज़ 49.34%. सो यू हैव टू ऑब्वियसली रिमेंबर दिस कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ट्यूबवेल्स का है 49% एंड देन कैनल्स 22.8% इन नेट इरीगेटेड एरिया. So now our third data C, that is जो दिया है टेबल में, that is area under crops. Now you have also to remember this table. I am sure you must be thinking that's a whole lot of data to remember, but हो जाएगा if you give multiple revisions. I am sure हो जाएगा. एंड समटाइम्स डेटा इज़ ऑल्सो रिपीटेड, क्योंकि जब हम एडवांस एस्टिमेट्स करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट वी विल स्टडी, सो सम डेटा इज़ ऑल्सो रिपीटेड, सो डोंट वरी, you will get it through. So you have just to remember and just take a broad idea of area under the crops. So area under the crops, सबसे पहले total food grains are around 136 million hectares. Total cereals and millets are in the area of 108 million hectares. टोटल क्रॉप्ड एरिया हमने याद किया, दैट वाज 219 मिलियन हेक्टर्स. टोटल नॉन फूड क्रॉप्स इज अंडर 59 मिलियन हेक्टर्स. एंड इसका आप मतलब आइडिया आपको होना चाहिए कि राइस इज अंडर 49 मिलियन हेक्टर्स, वीट 34, देन टोटल पल्सेज आर अंडर 27 मिलियन हेक्टर्स. आपको पूरा याद नहीं रखना है, जस्ट यू कैन रिमेंबर राइस 49 मिलियन हेक्टर्स, वीट 34, पल्सेज 27, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस 4.5 मिलियन हेक्टर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 12, टोटल फूड क्रॉप 160 एंड टोटल नॉन फूड क्रॉप्स इज 59, राइट. Then oil seeds 33, sugarcane 6.7, then cotton is 13 million hectares. ऐसे आप एक टेबल बनाकर उसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं. That is the table of area under crops. Now another data is relating to gross value added of agriculture and allied sectors. So the contribution of agriculture and allied sector is 17.7% of India's GVA at current prices during 23-24. Now also some important key points were given in the report on agri exports 23-24 that becomes important for us to study for our exam. What is India's global share as per WTO 2023? हमारा इंडिया में जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है दैट इज़ अराउंड 2.2% ऑफ वर्ल्ड एग्री ट्रेड. जो हम इंपोर्ट करते हैं दैट इज़ अराउंड 1.7%. हम इंडिया जो है वो 14th लार्जेस्ट एग्री एक्सपोर्टर है. सो ये डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी. लाइक फर्स्ट वन इज़ कि एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट में इंडिया में 2.2% शेयर है, इंपोर्ट्स में 1.7% शेयर है, एंड वी आर द 14th लार्जेस्ट एग्री एक्सपोर्टर. देन इन इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हमारा क्या शेयर है? दिस वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स. सो इंडिया का 22-23 में इट वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज अराउंड 11.7%, बट 23-24 में हमारा परसेंटेज शेयर डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, दैट हैज़ बिकम अराउंड 11.1%. देन हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू भी कम हुआ है बाय 5.2% इन कंपैरिजन टू 22-23. नाउ ये जो डिक्लाइन हुआ है, वाई इट हैज़ हैपन? मेजरली इट हैज़ हैपन ड्यू टू वीट
दैट इज़ 96% हमने डिक्लाइन देखा है वीट के एक्सपोर्ट्स में. शुगर बाय 49% इट हैज़ डिक्लाइन. नॉन बासमती राइस 26% से डिक्लाइन हुआ. कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनमें हाई ग्रोथ देखा गया है? सो फर्स्टली कॉटन रॉ इंक्लूडिंग वेस्ट दैट इज़ 48% का इंक्रीज़ हुआ है. देन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स 41% इंक्रीज. फ्रेश फ्रूट्स, टोबैको, अनमैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स एंड राइस बासमती के केस में इंक्रीज़ हुआ है. नॉन बासमती राइस के केस में डिक्रीज़ हुआ है. सो आपको ये याद रखना है कि नॉन बासमती के केस में डिक्रीज़ हुआ है हमारा एक्सपोर्ट और बासमती के केस में इंक्रीज़ हुआ है एक्सपोर्ट. हमारे मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हुआ यूएसए, चाइना, यूएई, बांग्लादेश, वियतनाम, इराक, मलेशिया एंड इंडोनेशिया. सो इसमें आपको जो याद रखना है दैट इज़ एक्सपोर्ट्स डेटा, इम्पोर्ट्स डेटा, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स डेटा, वैल्यू हैज़ डिक्रीज एंड इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू वीट 96% डिक्लाइन, शुगर 49%, नॉन बासमती राइस 26%. फिर हाई ग्रोथ आइटम्स क्या रहे हैं एंड व्हाट आर मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस. नाउ वॉट हैज़ बीन इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉमोडिटी. तो सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर कौन सी कॉमोडिटी है जो हमने एक्सपोर्ट की है? दैट इज़ मेराइन प्रोडक्ट्स. सो ये आपको याद रखना है. टॉप 10 इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रिमेंबर टॉप 10 बट फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ मेराइन प्रोडक्ट्स. देन राइस, बासमती राइस एंड देन अदर राइस, मतलब राइस अदर देन बासमती. सो फर्स्ट इज मेराइन प्रोडक्ट्स, देन बासमती राइस, देन राइस अदर देन बासमती राइस, फिर स्पाइसेस, बफेलो मीट, शुगर, ऑयल मील्स, मिसक्लेनियस प्रोसेस्ड आइटम्स, कॉफ़ी, फ्रेश फ्रूट्स. सो ये हमारा टॉप 10 कॉमोडिटी है ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़. नाउ अब हम इम्पोर्ट्स की बात करें तो इम्पोर्ट्स में भी हमने डिक्लाइन देखा है 2022-2023 के कंपैरिजन में ऑफ अराउंड 4.8%. एंड ये जो डिक्लाइन हुआ है वो मेनली हुआ है वेजिटेबल ऑयल्स का हमने इम्पोर्ट कम करा है बाय 26%. कॉटन रॉ इंक्लूडिंग वेस्ट का हमने इम्पोर्ट कम करा है बाय 57%. तो आपको ये याद रखना है बाय 57% एंड बाय 26%. और हमने इंक्रीज़ क्या किया है? हमारा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है इम्पोर्ट्स में. पल्सेस हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं, 96% इंक्रीज़ हुआ है पल्स के इंपोर्ट में. देन शुगर बाय 592% इंक्रीज़. अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्रेश फ्रूट्स, अदर ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस. तो सबसे ज़्यादा तो शुगर है, बाय 592% हमारा इंपोर्ट बढ़ा है. नाउ हमारे टॉप इंपोर्ट क्या होते हैं एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ में? तो सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स को, देन पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स, शुगर, देन स्पाइसेस, कैश्यू, अल्कोहलिक बेवरेजेस, नेचुरल रबर, अदर ऑयल सीड्स एंड कॉटन रॉ इंक्लूडिंग वेस्ट. Next we are going to study about statistical report on value of output from agriculture and allied sector. Now this is the second report that we are going to study. इसके पहले जो भी information हमने पढ़ी that was relating to Ministry of Agriculture का annual report. Second report that we are going to study is statistical value on value of output report from agriculture and allied sectors. वो रिपोर्ट रिलीज़ की थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने और ये रिपोर्ट रिलीज़ की है NSO यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, जो कि हमको वैल्यू जो है आउटपुट की फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का डेटा देता है, कंपेयर करता है डेटा कि 2011-12 में क्या डेटा था और 23-24 में क्या डेटा है. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जिसका डेटा हमें NABARD एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना इम्पॉर्टेंट है. नाउ इसमें जो डेटा दिया हुआ है इन द रिपोर्ट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज कि इंडिया में जो एरेबल लैंड है वो है 155 मिलियन हेक्टर्स एंड वी रैंक सेकेंड वर्ल्ड वाइड इन कैटेगरी ऑफ एरेबल लैंड. सेकेंडली सीरियल के केस में हमारा इंडिया रैंक्स थर्ड इन प्रोडक्शन. ग्राउंडनट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर केन, टी एंड जूट में हमारा रैंक सेकेंड है. देन लाइव स्टॉक में हमारे पास बफेलो और गोट के केस में लार्जेस्ट हर्ड्स है, कैटल और शीप के केस में सेकेंड लार्जेस्ट है. हम चिकन पॉपुलेशन में 7th है, मिल्क प्रोड्यूसर हम फर्स्ट है, एग्स में हम सेकेंड है एंड मीट में हम 5th है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन एज पर दिस रिपोर्ट.
तो ये रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट डेटा है जो आगे हमें और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएगा, वो आपको याद होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज GVA एट करेंट प्राइजेस. सो GVA करेंट प्राइजेस में एग्रीकल्चर का जो शेयर है परसेंटेज वाइज इट इज़ 18.2% ऑफ 22-23. सो GVA जो है वो 18.2% है, और जो 2011-12 में जो डेटा था और जो 2022 में जो डेटा है उसमें जो इंक्रीज़ आया है दैट इज़ ऑफ 225% इंक्रीज़. सो यू हैव टू रिमेंबर कि एग्रीकल्चर का जो GVA है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 2011-12 टू 2023-24. सो वो इंक्रीज़ हुआ है अराउंड 225%. नाउ सेकेंडली जो डेटा है वो GVO यानी ग्रॉस वैल्यू आउटपुट. तो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट कांस्टेंट प्राइसेस जो है वो पहले फॉर एग्जांपल इट वाज इन 2011 इट वाज 1908,000 करोड़, जो कि बढ़ के अब हो गया है 2949,000 करोड़. इट मीन्स 44.6% इंक्रीज़ हुआ है ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट कांस्टेंट प्राइसेस. तो ग्रॉस वैल्यू एडिट इंक्रीज़ हुआ है 225% एंड ग्रॉस वैल्यू आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है बाय 54.6%. जो हमारा ग्रॉस वैल्यू आउटपुट है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर है क्रॉप्स का. सो क्रॉप्स का आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो क्रॉप्स का है, और उसके बाद फिर है शेयर जो है फिर वो लाइफ स्टॉक एंड देन फॉरेस्ट्री एंड देन फिशिंग एंड एक्वाकल्चर. नाउ जो हमारा क्रॉप्स में लार्जेस्ट ग्रोथ है या लार्जेस्ट आउटपुट क्रॉप सेक्टर में है. सो क्रॉप सेक्टर में जो है उसके अंदर सीरियल्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ऑलमोस्ट 52.5% शेयर है ऑफ टोटल क्रॉप आउटपुट वैल्यू. आई एक्सप्लेन यू अगेन. हमने पढ़ा कि अंडर एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू आउटपुट ये जो कैटेगरीज है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर है क्रॉप का, राइट. अब क्रॉप्स में भी वी आर टेलिंग कि सीरियल्स एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो मिलाकर 52.5% शेयर है सीरियल्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का. सी है ये जो आगे आगे आने वाली जो भी सारी स्लाइड्स है उसमें ऐसे ही दो चार्ट्स दिए होंगे. फर्स्ट विल बी ऑफ 2011-12 डेटा एंड सेकेंडली वुड बी ऑफ 22-23 डेटा. सो 2011 में क्रॉप्स में सीरियल्स का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन था 28.4% एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का था 24.2%. यानी मिलाकर भी इट वाज अराउंड 52.6%. पर 22-23 में सीरियल्स का कंट्रीब्यूशन है 27.3% एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंट्रीब्यूशन सीरियल से भी ज़्यादा हो गया है दैट इज़ 28.3%. बट मिलाकर है अराउंड 55.6%. सो हेयर इट्स गिवन 52, तो ये डेटा इज़ ऑफ 2011-12. अभी हो गया है 55% अराउंड 55%. सो अभी सीरियल्स से को भी ओवरटेक कर लिया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ने. तो टोटल जो हमारा क्रॉप्स का जो डेटा है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि 2011-12 में जैसा कि मैंने बताया कि सीरियल्स में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कम था. बट 23-24 में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसने आउटपुट को क्रॉस कर लिया है सीरियल्स के आउटपुट से. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ग्रॉस वैल्यू आउटपुट इज़ मोर देन दैट ऑफ सीरियल्स. नाउ सीरियल्स में पैडी और वीट का कंट्रीब्यूशन जो है वो अराउंड 85% है. टॉप 5 स्टेट्स आर यूपी, एमपी, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, जिनमें 53% ऑफ सीरियल GVO कंट्रीब्यूट करते हैं एंड यूपी का टॉप स्पॉट है डिस्पाइट डिक्लाइन. आई विल टेल यू दिस कि अब हम सीरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो टॉप सीरियल में पैडी का कंट्रीब्यूशन इज़ अराउंड 52.5%, जो 2011 में भी 50% था और अब बढ़ के हो गया है 52%. उसके बाद वीट का कंट्रीब्यूशन इज़ अराउंड 32% और उसके बाद फिर मेज़, बाजरा, ज्वार एंड रिमेनिंग सीरियल्स. तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पैडी एंड वीट इन सीरियल्स. और अब हम स्टेट्स की बात करें तो यूपी का कंट्रीब्यूशन पहले हाईएस्ट था 2011-12 में और अभी भी यूपी का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है. बट जो कंट्रीब्यूशन है शेयर का वो थोड़ा कम हो गया है. पहले 18.6% था और अब 16.9% है. बट अभी भी यूपी जो है वो हाईएस्ट है इन सीरियल्स प्रोडक्शन. सो यू हैव टू रिमेंबर द स्टेट्स नेम दैट आर हाईएस्ट इन दैट पर्टिकुलर क्रॉप प्रोडक्शन. सो सीरियल्स में यूपी रैंक्स हाईएस्ट.
Now if we talk about fruits and vegetables, so I'll show you the first chart. तो fruits and vegetables में आप देख सकते हैं कि टॉप जो पहले था वो था मैंगो विथ 11.7% शेयर इन फ्रूट्स. इन वेजिटेबल्स इट इज़ पोटैटो, राइट. नाउ इन 22-23 it is now banana that is highest, and in vegetables it is still potato. So here it is saying the same thing कि banana ने मैंगो को ओवरटेक कर लिया है इन फ्रूट्स GVO. सो नाउ बनाना का जो GVO है वो हाईएस्ट है. पहले मैंगो का GVO हाईएस्ट होता था बट नाउ इट इज़ बनाना. सेकेंडली पोटैटो जो है वेजिटेबल कैटेगरी में इट इज़ हाईएस्ट. Then floriculture nearly doubled in value from 17.4 K crores to 28.1 K crores. So floriculture का contribution almost double हो गया है. Fruits में first it was mango, now it is banana, and potato is in vegetables जिसका highest agriculture value output है. इन स्टेट्स अगर हम बात करें तो पहले भी वेस्ट बंगाल का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट था इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट कांस्टेंट प्राइसेस, और अभी भी वेस्ट बंगाल का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के केस में आपको जो स्टेट याद रखना है दैट इज़ वेस्ट बंगाल. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस. तो कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस में मध्य प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है वो टॉप पर है विथ 19.2% शेयर. उसके बाद कर्नाटक है और उसके बाद फिर गुजरात है. नाउ ऑयल सीड्स. तो ऑयल सीड्स में 2011 में आप देख सकते हैं कि सोयाबीन का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट था, पर अभी रेप सीड एंड मस्टर्ड का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है विद 28.6% शेयर. तो अगर ऑयल सीड्स की अगर बात करेंगे या क्वेश्चन आएगा कि विच ऑयल सीड हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ आउटपुट एट कॉन्स्टेंट प्राइजेज इन नाउ 22-23, इट इज़ नाउ रेप सीड एंड मस्टर्ड. नाउ विच इज़ द टॉप स्टेट जो कंट्रीब्यूट करता है फॉर आउटपुट ऑफ ऑयल सीड्स. तो फर्स्ट इट वाज गुजरात जिसका हाईएस्ट शेयर था. नाउ इट इज़ राजस्थान इन 22-23 जिसका हाईएस्ट शेयर है. राजस्थान ने गुजरात को ओवरटेक कर लिया है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पल्सेस. तो पल्सेस में ग्राम जो पल्स है वो उसका कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट था, एंड नाउ ऑल्सो ग्राम का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है या और उसका परसेंटेज शेयर इवन इंक्रीज हो गया. फर्स्ट इट वाज 41.8%, नाउ इट हैज़ बिकम 44%. सो परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट रिमेंबर कि ग्राम का शेयर इज़ हाईएस्ट इन कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेस. नाउ MP now and then is the highest percentage contributing state in terms of pulses. So in pulses आपको याद रखना है मध्य प्रदेश is the highest percentage share contributor. Now livestock. So livestock में पहले भी मिल्क का contribution हाईएस्ट था और अभी भी मिल्क का contribution हाईएस्ट है. मिल्क के बाद आता है मीट और मीट के बाद एग्स. So अभी भी मिल्क, then meat and then eggs and then remaining livestock products. And in states UP was the highest contributor in 2011-12 and now it is राजस्थान जिसने यूपी को ओवरटेक कर लिया है इन आउटपुट ऑफ लाइफ स्टॉक एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस. तो लाइफ स्टॉक में यू हैव टू रिमेंबर कि नाउ इट इज़ राजस्थान, फर्स्ट इट वाज यूपी. नाउ फिशरीज़. सो फिशरीज़ में जो शेयर है वो भी इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 4.2% टू 7%. और ये मैं आपको बताती हूँ कि स्टेट पहले वेस्ट बंगाल था जिसका हाईएस्ट परसेंटेज शेयर था इन फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, बट नाउ इट इज़ आंध्र प्रदेश जिसका हाईएस्ट शेयर है कंट्रीब्यूशन का बाय अ बिग मार्जिन. आंध्र प्रदेश हैज़ नाउ ओवरटोक, लाइक नाउ आंध्र प्रदेश का शेयर इज़ 40.9%. 2011-12 में आंध्र प्रदेश का शेयर था सिर्फ 17%. वेस्ट बंगाल का शेयर था पहले 24.6% एंड नाउ इट हैज़ डिक्लाइन टू 14.4%. नाउ फिशरीज़ दो टाइप की होती है, इनलैंड फिशरी एंड मराइन फिशरी. तो पहले 2011-12 में इनलैंड फिशरी का जो कंट्रीब्यूशन था इट वाज अराउंड 57% एंड मराइन फिशरी का कंट्रीब्यूशन था 42%. बट अब मराइन फिशरी हैज़ ओवरटुक इनलैंड फिशरी. मराइन फिशरी का कंट्रीब्यूशन है 51% और इनलैंड फिशरी का कंट्रीब्यूशन है 49%. सो पहले इनलैंड वॉज 57, नाउ इट हैज़ बिकम 49%. तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट इट वॉज इनलैंड मोर देन मराइन, नाउ इट इज़ मराइन मोर देन इनलैंड. नाउ फॉरेस्ट्री में महाराष्ट्र इज़ द टॉप स्टेट कंट्रीब्यूटिंग स्टेट नाउ एंड देन जिसका आउटपुट ऑफ फॉरेस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. सो फॉरेस्ट्री में आपको याद रखना है महाराष्ट्र हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के डेटा को कवर किया है। देयर इज़ अ लॉट मोर लेफ्ट इन एग्रीकल्चर स्टैट्स, जो कि है एग्रीकल्चर सेंसस। हमें कवर करना है एमएसपी का डेटा, एडवांस एस्टिमेट्स, लैंड यूज स्टैट्स। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग. I think yeah, 2 classes would be enough for agriculture data, and then we'll move to next unit covering our data related to soil, water, irrigation and lot more. We will study very good important things in our reports series, and I hope कि आपको ये जो series है, जो segment है reports का, वो पसंद आ रहा है. And if you like it, please like, share and comment, and join our Telegram channel in the link description below. If you have any doubts, you can connect to me either on the Telegram channel or in the comment section for whatever doubts or reasons you may have. And also, if you want me to bring on some other topics, you may comment. But for now, I'll really try to finish reports बहुत ही जल्दी से. In 4-5 days I'll try to finish reports so that we can move easily to our next section of schemes and then ESI. Obviously, many students are also commenting for me to bring videos on ESI lectures, so I'll also now take my focus on to ESI apart from ARD, and then we'll also move to some other sections. I hope you enjoyed all these sessions, and I hope you're enjoying all these sessions, and if you're liking and if you're learning something new, please let me know. And thank you for watching.